Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. In today topic, you will study new chapter of transition element. In your smart syllabus, there are only two topics are included in this chapter. First topic which is included in your smart syllabus is general characteristics of transition element. So before going to start of this chapter, you will see about the simple diagram of 3D transition element in this slide. So here you can see a full periodic table of your textbook. That is the transition element highlighted in pink color area are known as the transition element, are also known as the D block element. There are three main important transition series are found in this series. One is known as the 3D transition series. Next one is 4D transition series, and another one is 5D transition series. So before going to start of this chapter properly, first you will know about what is transition element. Transition elements are those elements which have partially filled d orbital in their subshells. So we can say that all these elements have d subshell in the process of filling. So we can say that all these elements are known as the transition element. Now we will see our topic, that is the transition element and their characteristics. So dear student, here is the most important point which is known as the tricky point to remember this 3D transition series. The name of these element are listed below here. That is the proper name of these element, that is known as the scandium. Another one is known as titanium, and other is vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, and zinc. But dear student, most of the student will not memorize this whole 3D transition series. So these are some trick here, so you can memorize this 3D transition series easily. तो बच्चों आपको पूरी 4D 5D ट्रांजिशन सीरीज की अभी इतनी जरूरत नहीं है. आप कोशिश ये करें कि आप 3D ट्रांजिशन सीरीज को अच्छी तरह से तैयार कर लें. तो ये ट्रांजिशन सीरीज के लिए जो बच्चों पहला वर्ड है, दैट इज नोन एज द स्कैरी. उसके बाद इसके लिए इस्तेमाल किया गया टिनी. उसके बाद विस्कस, क्रिएचर, मे, फेयर, काउस. उसके बाद बच्चों ये लास्ट पे तीन वर्ड्स इकट्ठे हैं, दैट इज नाइस, क्यूट, ज़ेब्रा. तो उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से आपको ये आसान होगा याद करना. तो बच्चों पहले आप इस चैप्टर में इन तमाम 3D ट्रांजिशन सीरीज को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा. अब हम देखते हैं बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज. हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि चूंकि इन तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इनके इस तरफ आए, तो ये जितने भी एलिमेंट है इस ट्रांजिशन के अंदर, इन सबको हम बोलते हैं कि दीज आर ऑल नोन एज मेटल्स. मेटल्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सब के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं और इनके अंदर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होती है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द इलेक्ट्रॉन मेटल्स. So we can say that these are all metal in two sense, while some of them play important role in industry. And the metal which are used in industry are known as, one is titanium, उसके बाद है जी iron, chromium, nickel, copper, मोलाब्डिनम. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? मोलाब्डिनम. डब्ल्यू इलामत जो है बच्चों ये टंगस्टन की होती है, और ये टंगस्टन वो वायर है जो आपकी पहले जमाने में जो येलो लाइट वाले बल्ब होते थे उनके अंदर जो लाइट प्रोड्यूस होने की एक वजह थी, वो उसके अंदर टंगस्टन वायर का इस्तेमाल किया जाना था. उसके बाद है बच्चों ये इस एलिमेंट को हम बोलते हैं जिरकोनियम. एंड बी स्टैंड फॉर नाइओबियम. इसका क्या नेम है? नाइओबियम. टी ए स्टैंड फॉर टेंटलम, एंड टी एच स्टैंड फॉर थोरियम. तो ये तमाम एलिमेंट्स ऐसे थे बच्चों जिसको हम यूज करते थे मेनली किसके अंदर? दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ इन मेटल इंडस्ट्रीज के अंदर. उसके बाद बच्चों हम ये देखते हैं कि दीज आर ऑल हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्योंकि ये मेटल्स हैं बच्चों ट्रू सेंस में, तो इसके अंदर बाइंडिंग फोर्सेस भी बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनके हिसाब से हाई होंगे.
उसके बाद बच्चों अगर आप इनकी कंडक्टिविटी की बात करें तो जैसा आपने भी देखा कि टंगस्टन मेटल को हम यूज करते हैं फॉर लाइटनिंग द येलो बल्ब्स, इन द सेम वे यू कैन आल्सो यूज देम एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे ये डिफरेंट तरह के अलॉयज नजर आ रहे होंगे। अलॉयज बच्चों बेसिकली भर्त होते हैं, इसे हम उर्दू में भर्त का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक या एक से ज्यादा मेटल का आपस में मिक्सचर जो डिवेल्प होता है उसको हम क्या कहते हैं, अलॉयज। तो अलॉयज जो है वो इसमें ब्रास के भी होते हैं, ब्रोंज के भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के अलॉयज जो हैं वो फॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर आप इनकी बात करें तो हम ये कहते हैं सिवाय चंद एक के इनमें से ज्यादातर जो एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। इट मीन जो एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप लोगों ने कॉमनली स्टडी की है, दैट इज फॉर आयरन। ठीक है, आयरन की बच्चों आपने दो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टडी की होंगी, जिनमें से एक जो है वो हमारे पास आती है आयरन, इसको मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, तो बच्चों एक के लिए हम वैलेंसी इस्तेमाल करते हैं आयरन +2। इन द सेम वे अनदर इज नोन एज आयरन +3। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बच्चों आपको यहाँ पे इन दो एलिमेंट के लिए क्या नजर आ रहा है कि एक को हम क्या बोलते हैं, फेरस, और एक का जो जिसके अंदर आयरन की वैलेंसी बच्चों +3 होती है, इसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फॉर फेरिक। तो यहाँ से आपको ये आइडिया हुआ कि एलिमेंट आपका एक ही है, बट दिस एलिमेंट विल शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट इज नोन एज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। Hopefully it is clear to all of you. Now we will see that their ions and compounds are colored in solid state। कि mostly अगर आप इन transition elements की बात करें तो बच्चों इनके जो solution होते हैं वो colored होते हैं, और colored होने की reason अभी आप आगे चल के आपको idea होगा कि इनके अंदर d orbital involvement होता है। That's why इनके salt solution या ये element solid state में आपको colored नजर आते हैं। उसके बाद बच्चों इसकी मेन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट होती है, दैट इज नोन एज दी बाइंडिंग एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, अब मेटल्स जो हैं वो गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज शो करती हैं। तो मेटल्स जो हैं वो टफ यानी सख्त भी होती हैं, इनकी वायर्स भी बनाई जा सकती हैं, और इनकी हम बड़ी बड़ी चादरें भी बनाते हैं। जैसे आयरन की शीट्स होती है ना, ऐसे ही इन मेटल्स को हम कूट कर इनकी तारें भी बना सकते हैं, और उनकी जो है वो हम शीट्स भी डेवलप कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी मेलिएबल एंड डक्टाइल कहलाती है। ठीक है, अब इन मेटल के अंदर ये मेटल बहुत सख्त होती हैं, तो इनकी टफनेस की रीजन क्या है कि ये इंडिकेट करती है कि ये मेटल जो है वो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग रखती हैं। अब इसके अलावा बच्चों अगर आप इन तमाम ऑर्बिटल्स, इन तमाम एलिमेंट्स की बात करें तो बच्चों आपको इनके अंदर डी ऑर्बिटल्स जो है वो नजर आता है। तो डी ऑर्बिटल्स की बच्चों आप जानते हैं कि टोटल जो है वो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉनों को रखने की टेंडेंसी होती है। अगर डी ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 को रख ले तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीटली फिल्ड स्टेट, और अगर डी ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉनों को रख लेगा तो हम इसको बोलेंगे, क्योंकि एक डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। तो अगर आप 10 का हाफ करें बच्चों तो ये कितना बनता है, 5। तो इस स्टेज में हम इसको क्या कहेंगे, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, और इस स्टेज में हम इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल की हमारे पास ये दो तरह से जो है वो स्टेट होती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वन चीज ये आती है कि व्हेन यू विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी ट्रांजिशन सीरीज, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 5th एंड ग्रुप 6b। तो ये बात अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आप यहाँ देखें। तो बच्चों ये हमारे पास 3D ट्रांजिशन सीरीज, पहले आपको ये ऐसे हॉरिजेंटल नजर आ रहा था, बट नाउ आप इस टेबल को देख सकते हैं इसी फॉर्म में। तो यहाँ पे आप नोट करें कि यहाँ पे एलिमेंट्स स्कैंडियम जो 3D ट्रांजिशन सीरीज है यहाँ से स्टार्ट होती है, इसके 3D के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन बताए जा रहे हैं, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे आयनिक स्टेट में ये लिखे गए हैं। ठीक है, इनके आयंस बनाने के बाद। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ तक इंक्रीज हो रहे हैं जी, आपको ये आयरन तक बढ़ते हुए नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपको प्रॉपर आपको आइडिया होगा कि ये हमारे पास ट्रांजिशन सीरीज है। ये मैं आपके पास हमेशा इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसको हमने 3D ट्रांजिशन सीरीज का नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये ट्रांजिशन सीरीज 3D सबशेल से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर जो है वो इसका ग्रुप फर्स्ट बी कहलाता है, जिंक जो है वो ग्रुप सेकंड बी कहलाता है,
देन जो है स्कैंडियम। अब आपने इसको फर्स्ट नहीं बोलना, बल्कि याद रखिएगा जितनी भी ट्रांजिशन मेटल है इनका फर्स्ट ग्रुप जो है वो कॉपर से स्टार्ट होगा, देन जिंक से, एंड देन स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर विनाडियम एंड देन क्रोमियम। तो वो आपको ये बता रहे हैं कि जब आप इस ट्रांजिशन सीरीज के अंदर मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ तक बढ़ते हैं, विनाडियम तक एंड देन क्रोमियम तक, और उसके बाद इसके अंदर क्या होती है जी, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये आपको आइंस की फॉर्म में यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट तरह के एलिमेंट है। दैट इज वन इज नोन एज फॉर स्कैंडियम, अदर इज नोन एज टाइटेनियम, विनाडियम, देन क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक। रह गया है बच्चों एक एलिमेंट लिखने वाला हमारा, ठीक है। तो ये हमारे पास वो तमाम एलिमेंट है जिसको हमने अभी स्टडी करना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ नोट करें बच्चों कि स्कैंडियम के अंदर 3D का सब शेल होता है, ठीक है। 3D के अंदर इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इसके साथ हम इसका 4s2 लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो अगर आप इसको देखें तो ये 3D2 और 4s2 होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपको ये सारी बातें समझने में आसानी हो। चूंकि इसके अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ आप नोट करें कि इसके 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सिर्फ क्रोमियम ऐसा है जो यहाँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करेगा, ठीक है। तो बाकी जो है वो एज इट इज ही जाएंगे, 3D5 एंड देन 4s2। इसके बाद आता है बच्चों 3D6 एंड 4s2, देन 3D7 एंड देन 4s2। Now you can see that for nickel it will be 3D8 and 4s2. Now the same 3D10 and then 4s1. The last one element, that is your zinc, and its oxidation state is its electronic configuration is 3D10 and 4s2. तो बच्चों यहाँ अब आप इस टेबल में क्लियरली देख सकते हैं कि फॉर स्कैंडियम के लिए यहाँ देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ तक इंक्रीज हो रहे हैं, फ्रॉम मैंगनीज तक, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप नंबर फर्स्ट बी है। तो बच्चों ये मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये एलिमेंट किस तरह से लिखा हुआ था आपके पास। ये आपका ग्रुप नंबर एक मिनट मैं इसका जरा कलर चेंज कर लूं। ये आपके पास बच्चों ग्रुप नंबर थर्ड है, ये आपके पास ग्रुप फोर्थ है, ये ग्रुप फिफ्थ है, ये ग्रुप सिक्स्थ है, ये ग्रुप सेवंथ है, ठीक है। इसके बाद ये ग्रुप फर्स्ट बी था और ये जो है वो आपके पास सेकंड बी था। तो ये सिर्फ और सिर्फ लिखने का मकसद ये था कि आपको अंदाजा हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल है वहां पे पहले में डी में एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है, फिर दो हैं, फिर तीन, फिर उसके बाद पांच, और इसके अंदर भी पांच ही रहते हैं। यहाँ चार का फिगर नहीं आता बच्चों, नाइन का फिगर नहीं आता, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 6b तक, यानी आप विनाडियम या फिर क्रोमियम तक ये बात कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं बच्चों अपने टॉपिक की जानिब, जहां आप लोगों ने ये चीजें देखी थी कि जब भी आप मूव करते हैं इस ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ तक इंक्रीज होते हैं, अप टू दी ग्रुप 5th B एंड ग्रुप 6B में। उसके बाद यहाँ पे पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गोज ऑन डिक्रीजिंग अंटिल इट बिकम 0 एट ग्रुप नंबर 2nd B।
तो यहाँ देखें, ये अगर आप आयनिक स्टेट में देखें तो इसके अंदर आयंस में क्या होता है, जब ये आयंस बनते हैं तो आप जानते हैं कि जब +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो इसका मतलब होता है कि डी के अंदर पहले क्या था, यहाँ पे 3d1 और 4s2 था, तो इसके अंदर से दोनों 2 इलेक्ट्रॉन एस से और 1 इलेक्ट्रॉन जब डी से निकलेगा तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। इट मीन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बच्चों कितने हो जाएंगे, 0। इन द सेम वे यू कैन राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर टाइटेनियम आयन, दैट इज +3 आयन इन योर डायग्राम हेयर, जो आपने अभी व्हाइट बोर्ड पे नोट किया था कि यहाँ पे इसके एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और डी के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब टाइटेनियम बच्चों की स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ +3 की फॉर्म में, जब बच्चों ये एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके कहाँ से निकलेंगे, एस से, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसका डी से निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके डी में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये बच्चों याद रखना है आप लोगों ने कि ये किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उनकी जनरेट हो रही है कि टाइटेनियम में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, विनाडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। अब आप ये देखें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और ये कहाँ तक इंक्रीज हो रहे हैं, मैग्नीज तक। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो गए हैं, और ये डिक्रीज होते होते ये कौन सा है जी, ग्रुप फर्स्ट बी है, और ये आपका कौन सा है, ग्रुप सेकंड बी है। तो फर्स्ट बी यहाँ से स्टार्ट होगा, सेकंड बी यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड देन जो है वो आप कंटिन्यू इसको निकल तक करोगे। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये जिंक तक जाते हुए क्या हो जाते हैं, बिल्कुल 0 हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कहाँ तक हुए बच्चों, ग्रुप नंबर आपके 6b तक हो गए, एंड वीकन्स प्रोग्रेसिवली अप टू ग्रुप सेकंड बी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा था कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते होते जिंक तक चले गए थे। और ये ट्रेंड जो है वो वेरिएशन कहलाता है इन बाइंडिंग एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपने देखा कि जनरल इंक्रीज आती है इन बाइंडिंग एनर्जी, और ये बाइंडिंग एनर्जी कहाँ तक डिक्रीज होती है, एट विनाडियम पे। तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन आपने पहले तैयार करना है कि वट बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन क्या है जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर विल बी दी बाइंडिंग एनर्जी फॉर दैट एलिमेंट। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि विनाडियम और क्रोमियम तक बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसी वजह से इनके मेटालिक स्ट्रक्चर भी बच्चों चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीज है इन दी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है मैग्नीज तक, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है। तो इसी तरह अगर आप 4D ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो अगली जो ट्रांजिशन सीरीज है, यहाँ पे ये ट्रांजिशन सीरीज आपके पास जैसे ये वाली 5D वाली ट्रांजिशन सीरीज है ये। तो 5D ट्रांजिशन सीरीज में वो आपको बता रहे हैं कि ये सेम ये ट्रेंड जो है वो इसका कहाँ तक एंड होता है, टंगस्टन के एलिमेंट तक। टंगस्टन एलिमेंट की सिंबल क्या है बच्चों, W है, अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे जो है वो 5D के इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं इसकी बाइंडिंग में। तो इस तरह की ये डायग्राम बच्चों आप लोगों ने अपनी बुक में देखी होगी कि ये बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ है किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर। तो ये 3D ट्रांजिशन सीरीज है बच्चों, ये आपके पास 5D ट्रांजिशन सीरीज है। 4D को उन्होंने कंपेयर नहीं किया, तो आपने इसको इसके साथ मिक्स अप नहीं करना है, ठीक है। तो जो 3D ट्रांजिशन सीरीज है ये आपकी कहाँ तक जाएगी, विनाडियम तक, और 5D ट्रांजिशन सीरीज आपकी टंगस्टन तक जाती है। इट मीन टंगस्टन तक इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, वाइल फॉर 3D ट्रांजिशन सीरीज के लिए ये विनाडियम तक जो है वो इनकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो बच्चों ये तो थी हमारी फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज योर इसको हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी। नाउ वी विल सी अनदर टॉपिक, दैट इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम वही ट्रेंड होगा जो कि आपने बाइंडिंग एनर्जी के अंदर पढ़ा था कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, इन सॉरी इन एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या बाइंडिंग फोर्सेस के। तो जितना कोई एलिमेंट ज्यादा स्ट्रांग होगा उसके लिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इस सीरीज में कहां तक इंक्रीज होते हैं, इनटू द मिडल ऑफ दिस सीरीज एंड देन डिक्रीज टू अ मिनिमम लेवल एट द एंड ऑफ दिस सीरीज। सो द ट्रेंड इन द मेल्टिंग पॉइंट वो किसके ऊपर रिलेट करता है, इनके अंदर बाइंडिंग फोर्सेस पे। तो बाइंडिंग फोर्सेस अभी आपको बताया वो डी इलेक्ट्रॉन के अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उतनी ज्यादा इनके अंदर बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं बच्चों आप मेल्टिंग पॉइंट का, यही टंगस्टन तक इनके लिए मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसी तरह नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता स्कैंडियम से इंक्रीज होते हैं, फिर टाइटेनियम, फिर विनाडियम तक इंक्रीज होते हैं, फिर एकदम सडनली मैग्नीज तक डिक्रीज होते हैं, फिर आयरन से इंक्रीज होते हैं। तो इस तरह का ये ग्राफ आ जाता है। तो आप लोग इस 3D ट्रांजिशन वाले सीरीज वाले ग्राफ को याद कर लें ताकि एक एटलीस्ट आपको तैयार हो।
उसके बाद बच्चों हमारे पास अनदर कैरेक्टरिस्टिक आती है, दैट इज द कोवेलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। तो कोवेलेंट रेडियाई जो है वो आपका स्टार्ट में बिल्कुल डिक्रीज होता है। ये देखें कोवेलेंट रेडियाई, ये पहले कैल्शियम से सीरीज स्टार्ट, कैल्शियम जो है वो इससे पिछला एलिमेंट है, देन स्कैंडियम जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट का मेंबर है वो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज स्कैंडियम। तो यहाँ देखें रेडियस क्या है, रेडियस बेसिकली किसी भी एलिमेंट के लिए न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस होता है। तो चूंकि इनके अंदर क्या होगा कि कोवेलेंट रेडियाई इनका स्टार्ट में, ये देखें ये वैल्यू इंक्रीज होने को इंडिकेट करिए, आहिस्ता आहिस्ता ये ग्राफ नीचे आ रहा है, तो ये स्टार्ट में क्या हो रहा है, ये कोवेलेंट रेडियाई डिक्रीज हो रहा है। तो ये बता रहे हैं आपको कि जैसे ही 3D ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है तो ये एकदम से आपका डिक्रीज होता है, फिर ये देखिए ये लाइन इसकी कांस्टेंट होगी, अगर आप इसको यहाँ से मिलाएं तो ये इसका डिस्टेंस इन तीनों चारों एलिमेंट के लिए सेम निकलेगा। और फिर एंड पे आके आप नोट करें कि ये एकदम से इंक्रीज हो गया। तो ये जो ट्रेंड है वो एक नॉर्मल ट्रेंड नहीं है, तो एकदम से ये जो लास्ट पे आके इसका इंक्रीज हो जाना है, तो इस इंक्रीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया है ड्यू टू द फैक्ट दैट द filled 3D orbital have contracted into the electronic core and so shield the outer 4s electron more effectively from the nucleus। तो ये बात बच्चों मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है, ठीक है, और इसके अंदर एक जो है वो आपके पास सेंटर में क्या प्रेजेंट है जी, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और यहाँ आप थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लें कि ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। और इस दौरान आप ये कंसिडर कर लें कि ये मैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3D के इलेक्ट्रॉन्स ड्रा कर रही हूँ, ये जो है आपके पास 3D के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 3D के इलेक्ट्रॉन्स को हम ड्रा कर लेते हैं। तो डी के अंदर चूंकि ये मैं किस एलिमेंट के लिए बच्चों ड्रा कर रही हूँ, फॉर जिंक के लिए, ठीक है। तो अब चूंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या हुआ है कि इसकी आउटर मोस्ट शेल का साइज जो है वो कोवेलेंट रेडियाई जो है वो इसका इंक्रीज हो गया है, 2 4 6 8 एंड देन 10, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सारे जो है बच्चों आपके पास 3D के इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद ये हमारे पास 4s के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमारे पास 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये मैं लिख देती हूँ, ये आपके पास फॉर 4s के लिए हैं, और ये आपके पास बच्चों किसके लिए हैं, फॉर 3D के लिए। और ये एलिमेंट आपके पास कौन सा है, दैट इज योर जिंक एलिमेंट, ठीक है। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जिंक एलिमेंट के लिए ये कोवेलेंट रेडियाई क्यों इंक्रीज हो रहा है। अब पहले आप जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, इसके अंदर टोटल जो है वो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो वो कहते हैं कि ये डी के इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटली फिल्ड हो चुके हैं। अब ये आपस में क्या करेंगे, याद रखिएगा कि जब कोई एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा कंप्लीटली फिल्ड स्टेट में हो, डी के लिए कंडीशन है बच्चों की डी ऑर्बिटल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, कब, जब उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल इसका कंप्लीटली डी ऑर्बिटल अगर कंप्लीटली फिल्ड हो। तो डी ऑर्बिटल के हवाले से शील्डिंग इफेक्ट का कुछ ऐसा रोल है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कोर है ये कंट्रैक्ट हो जाती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉनिक कोर कंट्रैक्ट हो जाती है, यानी ये इस तरह से कंट्रैक्ट होती है कि ये न्यूक्लियस को इनके ऊपर होल्ड नहीं लगाना पड़ता, बल्कि ये न्यूक्लियस अब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर इतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाता। क्यों नहीं लगा पाता, क्योंकि आप यहाँ नोट करें कि इन सब के अंदर डी ऑर्बिटल में प्रोग्रेसिवली जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके अंदर इंक्रीज हो रहे हैं। बट इन केस ऑफ जिंक एलिमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन जिंक, दैट इज 10। तो ये देखें अगर आपके इन सब के अंदर जो है वो मैक्सिमम रिपल्शन होगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। इसी तरह इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, इसके अंदर भी रिपल्शन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और जितने भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, रिपल्शन का फिनोमिना होता है। तो जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी तो न्यूक्लियस का सारा होल्ड किसके ऊपर लग जाएगा, इन एलिमेंट की रिपल्शन को कंट्रोल करने पर लग जाएगा।
एज ए रिजल्ट हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जितने भी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इन सारों को कंट्रोल करने पर अपनी कुवत लगा देगा। एज ए रिजल्ट न्यूक्लियस की वो फोर्स जो कि आउटर मोस्ट शेल के 4s के इलेक्ट्रॉन्स पर होनी चाहिए थी, वो उतनी नहीं रह पाएगी। एज ए रिजल्ट इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये साइज किसके लिए इंक्रीज होगा, फॉर जिंक एलिमेंट के लिए साइज जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह बात आपको समझ आई होगी कि इनके अंदर फिल्ड 3d ऑर्बिटल आ गया। किसके अंदर बच्चों, जिंक के अंदर। जिंक में भी आपने देखा कि इसका 3d इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटली 10 यानी फिल अप हो चुका है, और वो इतना मैक्सिमम हो चुका है कि न्यूक्लियस का सारा होल्ड जो है वो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की रिपल्शन को कंट्रोल करने पर लग जाता है। एज ए रिजल्ट जो आउटर मोस्ट शेल के 4s वाले इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर नहीं लगता, तो उनका साइज डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। जबकि अगर आप यही अगर आप यही ट्रेंड आइंस के लिए बच्चों सेट करेंगे तो आयनिक रेडियाई के लिए चेंजेस जो है वो इतनी ज्यादा रेगुलर नहीं होती, सो दैट पीरियोडिक ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज आइंस आर डिफिकल्ट टू रैशनलाइज। रैशनलाइज का मीन होता है क्लासिफाई करना कि आयनिक, ये तो बच्चों था एलिमेंट के लिए, ये है अगर आप देखें तो ये इनके आइंस के लिए। तो आयन के लिए कहते हैं कि इतना रेगुलर ट्रेंड नहीं है जैसा कि इन एलिमेंट के लिए था, तो इसलिए हम इनके लिए कोई कंफर्म बात या कोई भी क्लासिफिकेशन के हवाले से या कोई भी डेफिनेट बात जो है वो हम नहीं कर सकते। तो ये तो था बच्चों कोवेलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। now we will see another property of these element, that is the paramagnetism। तो paramagnetism के हवाले से याद रखिएगा कि paramagnetism जो है ये प्रॉपर्टी रिलेट करती है दी सब्सटेंस। सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन है आपके पास पैरामैग्नेटिज्म की और डायामैग्नेटिज्म की। तो पहले तो आप यहाँ देखें कि ये एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन है जो कि रैंडमली है, कब, जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया। बट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये सारे के सारे लाइन अप हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और उनके साथ इनकी वीकली अट्रैक्शन डेवलप होती है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि वीकली अट्रैक्टेड होता है बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके बरक्स वो सब्सटेंस जो कि अट्रैक्ट नहीं बल्कि रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का नाम देते हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म बच्चों ये नाम ही इंडिकेट करता है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से होता है। ये फिनोमिना पैरामैग्नेटिज्म का, इट इज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन, बिकॉज देयर इज अ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद दिस स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। आप ये जानते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल स्पिन करते हैं, स्पिन करने की वजह से उनके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है। तो आया या तो उनकी लाइन अप जो है आया वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग होते हैं या फिर उसके एंटी पैरेलल होते हैं। तो इसी वजह से इनके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। ये यानी मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको हम म्यू बोलते हैं, ये वैल्यू इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, ये बच्चों मैं आपको बोर्ड पर ही बताती हूँ। तो फर्ज करें कि हमारे पास एक ऑर्बिटल है, ठीक है। एक ऑर्बिटल के अंदर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। कि पहली पॉसिबिलिटी बच्चों हम चेक करते हैं कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर की जानिब हो सकता है और एक इलेक्ट्रॉन नीचे की जानिब हो सकता है, ये तो होगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही है, तो यहाँ देखें ये डी ऑर्बिटल सारे वो हैं जहां पे D5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इन सब के अंदर, इन पांचों के डी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 by 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी पांचों ऑर्बिटल्स हैं एक डी के अंदर। टोटल जो है बच्चों आप जानते हैं कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर मैं ये ड्रा करके आपको बताऊं तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ देखें कि ये एक डी का ऑर्बिटल है, ये सेकंड डी है, उसके बाद ये थर्ड वन है, उसके बाद ये फोर्थ वन है। तो एक डी के अंदर टोटल जो है वो आपको कितने नजर आते हैं, टोटल 5 आपको नजर आते हैं। तो अगर आप इसके लिए अनपेयर, जिसके अंदर डी के अंदर टोटल 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ देखिए डी के अंदर टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसके लिए बात करें कि आहिस्ता आहिस्ता पैरामैग्नेटिज्म का करेक्टर भी इंक्रीज होता है फॉर क्रोमियम एंड मैग्नीज के लिए। अगर आयरन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाए तो उस स्टेज के अंदर भी आयरन
D5 की स्टेज में आ जाएगा। D5 का मतलब क्या है कि इसके अंदर हर ऑर्बिटल में बच्चों दो इलेक्ट्रॉनों को रखने की टेंडेंसी है। लेकिन अगर ऑर्बिटल D5 की स्टेट में है, यानी इसके अंदर ये हाफ फील्ड स्टेट में है डी ऑर्बिटल, यानी इन सबके एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है जो कि इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ अलाइन अप होने को डिस्टर्ब करे। तो इसकी अट्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डेवलप होगी और ये एलिमेंट पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो इसकी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, इसके अगेंस्ट करेगा। जैसे एक जगह पे दो लोग हों तो उनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, उन दोनों के दरमियान में कोई लड़ाई हो सकती है किसी भी बात को लेके। इन द सेम वे हम ये कह रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो कि इसके एंटी पैरेलल होगा, तो जो इफेक्ट ये फॉर एग्जांपल अगर ये स्पिन कर रहा है पैरेलल डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो रोटेट करेगा। एज रिजल्ट इसके इफेक्ट को ये कैंसिल आउट कर देगा। तो यही वजह है कि वो एलिमेंट जिनके अंदर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड स्टेट में होता है, ये एलिमेंट डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो उम्मीद है ये बात समझ आई होगी कि पैरामैग्नेटिज्म का करेक्टर इंक्रीज होगा कब, जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में 5 तक मैक्सिमम इंक्रीज हो जाए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपके पेयर होते हैं किसी इलेक्ट्रॉन में, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उनका वो कैंसिल आउट हो जाता है, और जो सब्सटेंस होता है वो आपका क्या हो जाता है, डायामैग्नेटिक। तो अब आप यहाँ देखें कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब यहाँ देखें बच्चों, ये एलिमेंट आयन की फॉर्म में है। मैंने आपको भी पीछे भी बताया था कि आयरन +3 स्टेट में है, तब जाके इसके अंदर डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। इन द सेम वे मैग्नीज आयन भी +2 स्टेट में है, तब इनके लिए जो है ये मैक्सिमम होगा पैरामैग्नेटिक का करेक्टर, क्योंकि अब यहाँ लिखा हुआ इन्होंने कि इसके अंदर डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब आप जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके कम होते होते 0 पे हो गए हैं। तो जैसे ही 0 पे होंगे तो ये एलिमेंट जितने भी होंगे नीचे वाले, ये पैरामैग्नेटिक नहीं बल्कि क्या हो जाएंगे जी, डायामैग्नेटिक हो जाएंगे। तो अब आप ये देखें कि अगर आप इनका पैरामैग्नेटिक का ग्राफ जो है वो ड्रॉ करें, तो ये देखें ये इन तीन एलिमेंट के लिए मैक्सिमम निकल रहा है। मैक्सिमम जो है वो आयरन +3 और मैग्नीज के लिए निकल रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्रीज होते होते इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब ये बढ़ रही है। तो ये तो पॉइंट था बच्चों हमारा पैरामैग्नेटिक का। नाउ वी विल सी अवर अनदर टॉपिक, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगर आप इसको देखें तो यही आपको बताया था कि स्कैंडियम जो है वो जनरली 3d1 4s2 में होता है। तो ये जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनके अंदर चूंकि डी और एस के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इन एलिमेंट के पास टेंडेंसी है इन इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की। सबसे पहले याद रखिएगा 4 इंडिकेट करता है कि ये इनका आउटर मोस्ट शेल है, क्योंकि 4 से मुराद वैलेंस शेल है इनका, जो कि एन सब शेल होगा, जबकि इस 3 का मतलब है जो इससे नीचे होगा। ठीक है, तो 3 यहाँ पे नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास शेल नंबर को जाहिर कर रहा होता है। तो शेल नंबर इसका 4 है, जबकि इसका शेल नंबर 3 है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस से निकलते हैं, देन जो है वो डी से रिमूव हो गए। तो इन तमाम एलिमेंट में याद रखिएगा कि इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 2 आपको इन सब में नजर आ रही है कि ये इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ये 2 कब पॉसिबल होगी, जब एस के दोनों इलेक्ट्रॉन हर एक एलिमेंट से निकल जाएंगे, तो तब इसके पास पॉसिबल है कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। इसके बाद अगर आप यहाँ से देखें स्कैंडियम के लिए कि ये +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है और +3 भी। +2 तो आपको बताया कब शो करेगा, जब एस से दोनों निकलेंगे, और अगर डी से भी निकल जाते हैं तो तब ये +3 स्टेट शो करेगा। फॉर टाइटेनियम के लिए +2 +3 एंड +4। इन द सेम वे यही सेम ट्रेंड आपके पास डिफरेंट एलिमेंट का होगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि इन एलिमेंट के पास वेरिएबल वैलेंसी होती है, क्योंकि इनमें इन्वॉल्वमेंट होती है अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन की इन एडिशन टू एस सबशेल के। एस से तो निकलते ही निकलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन एलिमेंट में डी सबशेल से भी इलेक्ट्रॉनों की रिमूवल होती है। उसके बाद आपने ये देखा कि इन तमाम एलिमेंट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब पॉसिबल है, जब सारे के सारे एस से इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों निकल जाएंगे। जबकि अगर आप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट के लिए पॉसिबल है, फॉर मैग्नीज के लिए। और इनके अंदर फर्स्ट 5 एलिमेंट ऑल द एस एंड डी इलेक्ट्रॉन्स दे आर यूज फॉर बॉन्डिंग, कि अगर 2 निकले, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं एस से आप, फिर 2 निकालें, फिर एक इलेक्ट्रॉन डी से, फिर नेक्स्ट वन निकाले, तो इस तरह करते करते इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक आ जाती है। उसके बाद वो बता रहे हैं बच्चों आपको, अगर आप मैग्नीज के बाद आए जी, मैग्नीज के बाद कौन सा एलिमेंट है, आयरन है। ठीक है, इसके अंदर डी सबशेल क्या हो रहा है बच्चों, फिल अप हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता डी सबशेल फिल होते होते हो गया है, और ये डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया है। तो याद रखिएगा
डी सब शेल अगर कंप्लीटली फिल्ड हो तो वो कभी भी अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज नहीं करेगा, क्योंकि डी के लिए 10 स्टेट जो है वो इंतहाई स्टेबल स्टेट है। और जब कोई एलिमेंट स्टेबल, किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अगर स्टेबल स्टेट में आती है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉनों की रिमूवल आसान नहीं होती, वहां से इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान नहीं होता। इसलिए जिंक और कॉपर जैसे एलिमेंट +1 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, जबकि जिंक जो है वो हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को इंडिकेट करेगा। तो जी ये आपके पास एक वही कंप्लीट टेबल है, ताकि आपको जो है वो क्लियर हो इन ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी आती है, दैट इज द कलर। तो अगर आप इन तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कलर की बात करें तो इनमें जो डी ऑर्बिटल है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर डेवलपमेंट इन दिस कंपाउंड। तो पहले तो आप ये देखें कि डी के आपने इन डिफरेंट सबशेल ऑर्बिटल्स के नाम पढ़े होंगे कि डी का पहला ऑर्बिटल होता है जी डी एक्स वाई, देन डी वाई जी, देन डी जी एक्स, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। तो इनको याद रखिएगा कि जब भी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो ये तब होते हैं जब इनके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ना हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इन सब की एनर्जी सेम होती है और इनको हम डी जनरेट ऑर्बिटल का नाम देते थे। और जैसे ही कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है तो फौरन से इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। तो ये ऑर्बिटल दो सेट में स्प्लिट होते हैं, एक सेट को बच्चों हम नाम देते हैं T2G का और एक को हम क्या नाम देते हैं जी EG का। तो इन दोनों ऑर्बिटल में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, ठीक है, इन ऑर्बिटल के दरमियान में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम किस साइन से इंडिकेट करते हैं, डेल्टा ई से। और इसको हम नाम देते हैं D2D ट्रांजिशन आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ डेल्टा ई। फर्ज करें कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसको एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा और एनर्जी ऑब्जॉर्व करके हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हाई एनर्जी स्टेट जो है वो स्टेबल नहीं होती, तो ये एलिमेंट वापस आएगा और जैसे ही वापस आएगा तो जितनी एनर्जी इसने ऑब्जॉर्व की होती है उतनी ये रिफ्लेक्ट बैक करता है और जिस वेवलेंथ की लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है वही आइन जो है वो हमें कलर नजर आता है। इसकी एग्जांपल बच्चों आपके सामने है। ये एक कंपाउंड है बच्चों, इसका नाम है हेक्सा एक्वा टाइटेनियम +3 आइन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी ये है कि कंपाउंड वायलेट कलर का होता है, यानी अगर आप इसका सोल्यूशन बनाए पानी में तो ये आपको जामनी रंग का ये इसका सोल्यूशन आपको नजर आता है। उसकी रीजन क्या है कि बच्चों एक होती है लाइट को एब्जॉर्ब करना, तो इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि ये येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके इसका इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है। जबकि जब इसका इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो वापस आते वक्त ये दो कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है, वन इज ब्लू लाइट एंड अदर इज रेड लाइट। तो आप जानते हैं कि ब्लू में अगर आप थोड़ा सा रेड लाइट का कलर डालें तो वो कलर क्या हो जाता है, वायलेट। तो इसीलिए इस कंपाउंड का जो ये कलर चूंकि रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट बैक हो रहे होते हैं और हमें हर वो चीज वही कलर नजर आता है जहां से रिफ्लेक्शन हो रही हो। तो चूंकि इसका कलर हमारे पास ब्लू और रेड लाइट का मिक्सचर होता है तो इसलिए कंपाउंड हमें क्या नजर आता है जी, वायलेट नजर आता है और यही इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक और आता है, दैट इज द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बच्चों क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल जब एक एलिमेंट के ये एटम है, ठीक है, तो इन जब एलिमेंट आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं ना तो बच्चों इनके दरमियान में देखें छोटी सी स्पेस नजर आ रही है आपको, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या इसको हम वाइड यानी खाली जगह का नाम देते हैं। तो इन खाली जगह में आप कोई से नॉन मेटेलिक एटम को फिट कर सकते हैं। याद रखिएगा ये मेटल का मेटल के साथ नहीं बल्कि मेटल का नॉन मेटल वाले जो स्मॉल एलिमेंट नॉन मेटल के हैं वो यहाँ पे आके इकट्ठे हो सकते हैं, यानी इन स्पेसिस में वो शामिल हो जाएंगे एंड ट्रैप हो जाएंगे। और इन एलिमेंट के नाम याद कीजिएगा, दैट इज हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, वो एंटर हो जाएंगे इन खाली जगहों में। और इसका नेम क्या है जी, इंटरस्टिसिस। Interstices are transition element and they will produce or impart useful features to them, that is why they are known as the interstitial compound का हम इनको नाम देते हैं। तो इनकी बच्चों कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि आपने इतनी रेशियो में इनको मिस करना है, तो ये नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाते हैं। समटाइम दे आर आल्सो टर्म्ड एज द इंटरस्टिशियल अलॉयज। अच्छा, अब आता है बच्चों प्रॉपर वर्ड, दैट इज दी अलॉयज फॉर्मेशन। जिस तरह अभी आपने इंटरस्टिशियल के बारे में पढ़ा कि इंटरस्टिशियल में ये जो कैविटी है इनके अंदर कोई से स्मॉल नॉन मेटालिक एटम आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोई मेटल दूसरी मेटल के साथ कंबाइन हो रही होगी। तो चूंकि हर मेटल का साइज, जिन मेटल का साइज दूसरी मेटल से मिलता होगा, सेम साइज की वजह से एक मेटल दूसरे एटम के मेटल के एटम को रिप्लेस कर लेगी और रिप्लेस करने की वजह से इनकी पोजीशन जो मेटल लेटस के अंदर होगी वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और ये जो है वो सब्स्टिट्यूशनल अलॉय जो है वो फॉर्म करेंगे। यानी याद रखिएगा यहाँ पे एक मेटल का एटम दूसरी मेटल के एटम से कंबाइन हो रहा है, जबकि इंटरस्टिशियल के अंदर मेटल का एटम नॉन मेटल के एटम से कंबाइन होता था।
उसके बाद यहाँ देखें, ये बच्चों आपके पास ये स्टील है, ठीक है। तो ये जो अलॉय स्टील है ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें आयरन के एटम में तीन चीजें होती हैं, वन इज क्रोमियम, अदर इज मैग्नीज एंड थर्ड वन इज निकल एटम। तो ये जो है वो स्टील को यूजफुल प्रॉपर्टी देती है जिसकी वजह से स्टील को जंग नहीं लगता, और दीगर जो है वो इलास्टिसिटी एंड अदर फैक्ट्स होते हैं जो कि इसके अंदर यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद बच्चों दो इंपॉर्टेंट अलाइज हैं इसके, वन इज ब्रैस एंड अदर इज ब्रोंज। तो ये सारे तमगे भी आपने अक्सर सुने होंगे जिनको दिया जाता है। तो ब्रास का कलर जो है वो इस तरह का होता है, ये दो मेटल दैट इज कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर है, जबकि ब्रोंज मेटल जो है वो कॉपर प्लस टिन का मिक्सचर होता है, और इनको हम कॉइनिज अलाय का भी नाम देते हैं। तो बच्चों हमारा टॉपिक आज का यहीं तक था। आज के टॉपिक के हवाले से अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, आप लोग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।